Students, now I'm starting exercise 5.2. In this exercise we did till question 12. Now in this video I'm starting from question number 13. So 13th question is how many 3-digit numbers are divisible by 7? 7 से divisible 3-digit numbers कितने होंगे? ठीक है. So firstly 3-digit numbers start कहाँ से होते हैं? 100 से और 100, 101 और आगे लास्ट 999 तक. अब इन नंबर्स में से ये मैं रफ वर्क यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ. इसमें से हमें 7 से डिविजिबल नंबर्स चेक करने हैं. सो फर्स्टली 100 को 7 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 14 7 जा 98, 3 30 7 4 जा 28, 2 इज लेफ्ट. तो 2 अगर हम 100 में से माइनस करेंगे तो 100 माइनस 2 विल बी 98. अब 98 तो 7 से डिविजिबल है बट इट इज़ नॉट 3-digit नंबर. दैट मीन्स यू हैव टू टेक नेक्स्ट नंबर. सो 98 प्लस 7 दैट विल बी 98 में अगर हम प्लस 7 करें सो इट विल बी 105. सो फर्स्ट नंबर विल बी 105. सो वी आर राइटिंग 3-digit numbers. 3-digit numbers divisible by 7. Divisible by 7 are first number I am taking 105, second number I am taking 112 and next 7 ऐड कर लेंगे सो 119 lost. How we can find last number? So it is 999. Now we have to divide 999 by 7. 7 is 7, 2, 29, 7 4 ja 28, 1 is left 19, 7 2 ja 14. How much left? 5. 5 माइनस कर लीजिए 999 में से मीन्स 994. So the last number is 994 and we have to find number of terms. That means we have to find n. So here we have first number, first term is given 105, second term is 112, third term is 119 and last term is 994. Means a equals to 105, d equals to we can find by subtracting first term from second. So it is 112 minus 105, that will be 7 and last term is last an or l we can say 994. Now the formula an equals to a plus n minus 1 into d. Now on solving an is 994 equals to a that is 105 plus n minus 1 into d that is 7. Now 105 transferred here, so 994 minus 105. 994 minus 105 equals to 7 n minus 1 into 7. Now subtract 14 में से 5 गया 9. Here it is left 8. 8 में 0 गया 8. 9 में से 1 गया 8. 89 divide by 7. Then we get n minus 1. Now 7 से cancel out कर लीजिए. 7 1 जा 7. 1 is left 18. 7 2 जा 14. 4 is left 49. 7 7 जा 49. 127. 1 transferred here. So 127 plus 1 equal to n. That means we get n equals to 128. That is your answer. So here 128 numbers which are divisible by 7. Clear? Now move to next question. So next question is 14. In this also same we have to find the numbers which are divisible by any other number. So 14th question is how many multiple of 4 lies between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में here we are doing again rough work. 10 और 250 के बीच में जो नंबर्स होंगे मीन्स 10 और 250 काउंट नहीं होंगे विच आर डिविजिबल बाई 4. तो सेम 10 को 4 से डिवाइड करें 4 2 जा 8. हाउ मच लेफ्ट 2. 2 माइनस कर देंगे मीन्स 8 आ गया. अब 8 10 से छोटा है मीन्स हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए होगा तो 4 2 जा 8 था 4 3 जा 12 या इसमें प्लस 4 कर दीजिए तो 8 प्लस 4 विल बी 12. सो फर्स्ट नंबर विल बी 12 मीन्स वी हैव टू राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250. हियर multiples of 4 lie between 10 and 250 are which are first number is 12. So next number will be 4 का multiple तो 12 4 16. next number is 20 डॉट. लास्ट नंबर 250 है अभी. 250 को अगर हम 4 से डिवाइड कर लें तो 4 6 या 24. 1 is left 0. 4 2 जा 8. how much left 2 यानी कि 250 में से 2 माइनस करें तो 248. so last number will be 248. सेम क्वेश्चन है. a is 12, d is 4 and an is 248.
again we can use the formula an is a plus n minus 1d, so we are putting values directly. An, that is 248, equals to a, that is 12, plus n minus 1 into d is 4. Now 12 transferred here, so it will be 236 equals to n minus 1 into 4. 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 5 जा 20, 3 is left, 36, 4 9 जा 36 equals to n minus 1. So here n equals to 59 plus 1, that will be 60. So answer is 60, means 60 terms are there which are multiple of 4 between 10 and 250. So move to next question. Question is 15. Now in this question, here for what values of n, value of n are the nth terms of two APs. There are two APs in question 15. First AP is 63, 65, 67 dot dot, and second AP is given 3, 7, I think, no, 3, 10, 7 is the difference, 3, 10, 17 dot dot. और इन दोनों एपीज का जो nth टर्म है वो कैसा इक्वल है, यानी कि इसका भी अगर हम an फाइंड करें, इसका भी an फाइंड करें, तो वो दोनों इक्वल होंगे. क्लियर? तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल ए मान ले रहे हैं. फर्स्ट टर्म को बड़ी है टर्म, तो a हमने मान लिया 63, d कैपिटल D मान लिया, दैट इज 65 माइनस 63, सो इट विल बी 2. और इसकी अगर हम nth टर्म फाइंड करें, मीन्स an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, सो a इज 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 2. क्लियर? सिंप्लीफाई. 63 plus 2 into n, that is 2n minus 2. So 63 minus 2, that is 61 plus 2n, that is an. Nth term of this AP. Same here also we find nth term. So here a small a मान रहे हैं, a 3, d 10 minus 3, that will be 7, and if we find an, that is a plus n minus 1 into d, that is 7. Again simplifying, 3 plus 7 into n, so 7n. 7 into 1 minus 7. Now 3 minus 7 is minus 4. So 7n minus 4. This is small an. Now in the question it is given that both the nth terms are equal. So since an equals to an, it is given. Not okay. Now putting the values, capital An is 61 plus 2n equals to small an is 7n minus 4. Clear? So 2n minus 7n equals to minus 4. 61 goes to here, so it will be again minus. So 61 minus 4, 2n minus 7n, that will be minus 5n equals to minus 65. Minus minus cancelled, so n equals to 13. So 13th term of both the terms are, both the APs are equal. दोनों की 13th term equal होगी, so n की value आ गई 13. Clear? Now move to next question, that is question number 16. So in this sum, 16th question is, determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. Clear? Now this question do yourself. Now I am starting 17th question. Same question you did previously. Find the 20th term from the last term of AP 3, 8, 13 and dot dot till 253. Last term is 253. देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं. फर्स्ट जो आपका nth टर्म है उससे भी हम कर सकते हैं, और दूसरा उसके लिए एक और टर्म हम फाइंड कर सकते हैं. ठीक है? सो हियर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो पहले हम स्टार्टिंग वाले मेथड से ही अप्लाई कर रहे हैं. सो फ्रॉम लास्ट हमें फाइंड करना है, तो अगर हम एपी को रिवर्स कर दें, क्योंकि यहाँ से 20 काउंट करना है हमें लास्ट से, मीन्स ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म यहाँ हो गई, थर्ड टर्म, फिर हमें 20 फाइंड करना है. तो ऑन रिवर्सिंग द सीरीज को हमने रिवर्स कर दिया. तो देखिए यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 + 5 8 हो रहा है, +5 13. अगर हम रिवर्स करेंगे तो 5 माइनस होगा. जैसे 13 से पहले अगर हम आए तो 13 से कितना आएगा 8, यानी कैसा है -5 करने से. तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, सेकेंड टर्म विल बी -5, दैट विल बी 248, थर्ड टर्म विल बी 243 और डॉट डॉट. लास्ट टर्म क्या है 3 है. ठीक, अब फर्स्ट टर्म जो थी वो लास्ट हो गई, लास्ट टर्म फर्स्ट हो गई. अब हमें अगर इसका 20th टर्म फाइंड कर लें तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी. an यानी कि a 20 हमें फाइंड करना है, तो a कितना है 253 + n - 1 इंटू डी, n यानी कि 20. पुट हियर n इक्वल्स टू 20, सो 20 - 1 इंटू d इज 248 - 253, दैट विल बी -5.
Clear? Now in the bracket, so 253 plus 20 minus 1 is 19 into minus 5. Clear? So 253 and 19 5 या 95, it will be माइनस का 95 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो प्लस का ही आएगा. 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 गया 8, हियर इट इज लेफ्ट 4, 14 में से 9 गया 5 and here it is left 1. So answer is 158, but it is the 20th term of this series and we have to find the 20th term of this series from last. So therefore 20th term of the given AP from the last is 158. That is your answer. क्लियर? 158 ही इसका आंसर होगा क्योंकि हमने सीरीज को रिवर्स कर दिया है. क्लियर? नाउ अगर हम दूसरा मेथड यूज़ करें तो उसके लिए देखिए इसी सीरीज को हमें यूज़ करना है. यहाँ पे मैं इसका दूसरा मेथड भी करा रहा हूँ. ठीक है, सेकेंड मेथड. तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, जो AP है उसी के फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो A कितना है 3, D कितना होगा 5. क्लियर? और लास्ट टर्म अगर हम देखें तो लास्ट टर्म कितना है 253. और इसमें अगर 20th टर्म हमें फाइंड करनी है फ्रॉम लास्ट, तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है nth टर्म, बट हम इसे an या tn रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. क्लियर? सो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट से, तो इसका फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू D. क्लियर? तो L दैट इज 253 माइनस n माइनस 1 मीन्स 20 माइनस 1 क्योंकि हमें 20th टर्म फाइंड करनी है. सो 20 माइनस 1 इंटू D, D इज 5. सो 253 माइनस 19 इंटू 5 दैट इज 95. सो अगेन सी दिस 253 माइनस 95 मीन्स सेम है, सो इट विल बी 158. तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. बस इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा जो कि L प्लस n माइनस 1D. तो आपको फिर ये अलग से लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहीं पे लिख चुके हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. क्लियर? या चाहो तो ये लाइन फिर से लिख देना. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज क्वेश्चन 17. In both the methods you can solve by any method. Okay, now next question is 18, that is the sum of the 4th and 8th term of AP is 24. 4th और 8th term का सम. ठीक है, सम वो नहीं है, सम ऑफ n टर्म्स स्टार्टिंग से नहीं है, केवल 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम है 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. So in this sum 4th term means A4 plus 8th term that is A8 is given how much? 24. And one more condition is given, that is 6th term and 10th term. 6th term means A6 and 10th term, so A10 is given I think 44. Yes, 44. Now use the formula in all. A4 is A plus n minus 1D, so it is I am writing directly A plus 3D. 8, so A plus 7D equals to 24. Simplify A and A, 2A plus 3D and 7D, that is 10D equals to 24. Take 2 common and divide, so we can get A plus 5D equals to 12. This is equation 1. Same here, A6 means A plus 5D, A10 so A plus 9D equals to 44. Add, so A and A, 2A plus 5D and 9D, that is 14D equals to 44. Again divide by 2, so A plus 7D equals to 22. This is equation 2. Now we can solve both the equations by any method, like elimination if we solve. So subtracting equation 1 from 2, सेकेंड में से, सेकेंड इक्वेशन में D ज़्यादा है. ओके, सो A plus 7D equals to 22 and first is A plus 5D equals to 12. On subtracting, sign changed, A cancelled, 7D minus 5D it is 2D, 22 minus 12 is 10, so here we separate D equals to 5. 2 5 10. Clear? D 5 आ गया, अब हमें A फाइंड करना है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं. सो A plus 5D, तो 5 इंटू
D, that is 5, equals to 12. So A will be 25 subtracted from 12, so it is minus 13. So A आ गया minus 13 और मैं फाइंड क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP. तो A1 आपका हो गया minus 13 and A2 is A plus D, that is A is minus 13 plus D is 5, so it is minus 8. Now A3, that is A plus 2D. A is minus 13 plus 2 into D, that is 5. 2 5 is 10. Minus 13, that is minus 3. So these 3 terms of this AP we found. Now move to next question. Now question number 19 is there. Only 2 questions are left. 19th question is, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. Starting salary उसकी 5,000 है and received an increment of 200 rupees. Means D increment हो रहा है 200 rupees का each year. In which year did his income reach rupees 7,000? So in this sum, first salary उसकी given है, उसको हम A मान ले रहे हैं, that is 5,000. और लास्ट सैलरी जो दी हुई है और इंक्रीमेंट कितना है 200, तो डी हो गया आपका 200 और लास्ट सैलरी यानी कि एल या फिर ए एन जो भी आप कहें, तो ए एन मैं कह दे रहा हूँ, या लास्ट सैलरी भी कह सकते हो आप, एल से भी डिनोट कर सकते हैं, इट इज़ 7,000. नाउ इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच 7,000? तो स्टार्टिंग सैलरी उसकी कौन सी ईयर में, 1995, यानी कि जो सैलरी है वो कब की है, 1995. स्टार्टिंग ईयर जो है दैट इज गिवन 1995. तो हमें एन फाइंड आउट करना है. क्लियर? नाउ तो एन फाइंड आउट कर लीजिए. ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज 7,000, ए 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 200. क्लियर? नाउ 5,000 ट्रांसफर here, so 7,000 minus 5,000, that will be 2,000 equals to n minus 1 into 200. 200 divide here, so it will be 200 से डिवाइड होगा 10 equals to n minus 1. That means n will be 10 plus 1, that is 11. तो 11th ईयर में उसकी सैलरी होगी. अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में. क्यों? जब आप 95 स्टार्टिंग ईयर कहते हो तो 95 में अगर आप ऐड करोगे 11 तो कितना आ जाएगा, 2006. बट A1 आपकी स्टार्टिंग वाली सैलरी कब की है, फर्स्ट सैलरी, यानी कि फर्स्ट ईयर कौन सा है आपका, 1995. क्योंकि जीरो नहीं है. एक्चुअली प्रॉब्लम यही है क्वेश्चन में कि हमारी जो सीरीज होती है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती, 1 से होती है. क्लियर? तो फर्स्ट हो गई 1995. अगर हम सेकंड कहेंगे तो 96, थर्ड दैट विल बी 97, फोर्थ 98, फिफ्थ 99, ये 1999 है. सिक्स्थ दैट विल बी 2000. नाउ सेवेंथ दैट इज 2001, एट्थ दैट इज 2002, नाइन्थ दैट इज 2003, 10th that is 2004 and 11th that is 2005. देखिए जल्दबाजी में आप आंसर गलत मत करना कि आपने अगर पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सही है और आपने क्या किया 95 प्लस 11, सो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. 2006 नहीं आंसर आएगा इसका, 2005. सो आफ्टर 11 ईयर मीन्स 1995 स्टार्टिंग सैलरी है, तो 11 ईयर हम उसमें ऐड करना है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट है ना कि जीरो है. क्लियर? तो 2005 में उसकी सैलरी होगी. तो therefore his salary will reach 7,000 in 2005. क्लियर? आपको डायरेक्टली लिखना है आंसर 2005, बट रॉन्ग मत करना. ठीक है? थोड़ा सा वेट करना, सॉल्व करना. ठीक है? नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. So 20th question is, Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75 in the next week. Her weekly saving becomes 20.75. and find out करना है. तो सेम क्वेश्चन है जैसे आपने भी 19 किया हुआ है. इसमें फर्स्ट जो वो है सेविंग, वो कितनी, 5 रुपीज़. तो A इक्वल्स टू गिवन है 5, A इक्वल्स टू 5 और D गिवन है 1.75. क्लियर? और लास्ट जो है वो कितना है, 20.75. an दिया हुआ है 20.75. तो an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1d. सो an इज 20.75 इक्वल्स टू a दैट इज 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू d इज 1.75. क्लियर? नाउ 20.75
माइनस 5 इधर माइनस में आ जाएगा, तो इट विल बी 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75 Now, in this sum, 15.75 divided by 1.75 equals to n minus 1. Decimal removed. On dividing it, 25 से cancel कर देंगे, 25 7 जा, here 25 6 जा 150, 7 is left, 75, 25 3 जा, and 7 9 जा 63. So we get n minus 1 equal to 9. That means n equals to 10. Means 10th वीक ना, हर वीक वो सेविंग कर रही है, तो 10th वीक में उसकी सेविंग जो है वो कितना हो जाएगा 20.75.